Hello students, welcome to our next video lecture. So in this video lecture, we are going to discuss about taxonomical aids. Till now we have discussed about taxonomic hierarchies, category, as well as the nomenclature, that is binomial nomenclature, and under the topic diversity in the living world, right? So moving on to the taxonomical aids. What do you understand by taxonomical aids? Word taxonomy or taxon or taxa, you all know, means categorization of these organisms, a unit, right? It is a unit, a level of classification or categorization. Now aids, you have already heard about first aid. So what do you understand by first aid? First aid means first helping thing provided to any injury, right? First help provided to any injury. So here aids means taxonomic aids. What are the helps, what are the terms which are going to help you in studying or in identification or in classification of different plant species and animal species, right? So here we are going to discuss about all those taxonomic aids. So what do you understand by taxonomic aids is, first moving on to the first point, that is taxonomic studies of various species of plants and animals and other organisms. It is done to know what? Know bioresources and diversity. This particular study is done to know about the bioresources and the diversity, right? Studies require collect, classify. What does these studies require? They require classification and identification of what? Collection of actual specimen of plant and animal species. Here in this case you need actual specimen to be collected, right? So what is the next is fundamental to study and essential for training in the systematics. This taxonomic aids or this taxonomic study is very much essential. It is fundamental means compulsory, relevant है. इसकी स्टडी रेलिवेंट है किस लिए? सिस्टमैटिक्स के, फॉर ट्रेनिंग इन सिस्टमैटिक्स. सिस्टमैटिक्स वर्ड जो है वो लास्ट आपके लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिस्टमैटिक्स, राइट? सो नेक्स्ट इज स्पेसिमेंस आर गैदर्ड. ठीक है, सो स्पेसिमेंस आर गैदर्ड फॉर द इंफॉर्मेशन एंड these specimens are preserved for the information of future studies. Suppose that कोई एक प्लांट स्पीशी है, वो एक्सटेंट होने पे आ गई है, राइट? तो उस स्टडी, उस प्लांट स्पीशीज़ को आपने प्रिजर्व करके रख लिया. कहाँ पे? हर्बेरियम में. हर्बेरियम में आपने उसकी लीव्स को कट किया है, प्रिजर्व किया है, कंपाइल करके रख लिया है with the data, with about the information about that particular plant species, right? So उससे क्या होगा? जब वो एक्सटेंट, इन केस अगर वो स्पीशीज़ एक्सटेंट भी हो गई, तब भी आप उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ के बारे में उस हर्बेरियम से जाके जितने टाइम पे वो उसके बारे में डेटा कलेक्ट किया गया है, यू कैन गेट टू नो अबाउट दैट पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज़. इसी तरह बोटानिकल गार्डन्स होते हैं, जिनको हम बोटानिकल गार्डन्स में वर्ड बॉटनी से ही आ रहा है, तो बॉटनी मतलब कि प्लांट स्पीशीज़, तो बोटानिकल गार्डन है तो प्लांट स्पीशीज़ का पूरा गार्डन क्रिएट किया जाता है. मैन मेड क्रिएटेड होता है, ह्यूमन मेड होता है, नेचुरल नहीं होगा, या कई बार नेचुरल कंडीशंस में ही उसको ऐसे बना देते हैं. होता क्या है, यहाँ पे कई सारे प्लांट स्पीशीज़ हैं, फ्लावर स्पीशीज़ हैं, या फ्रूटिंग एंड वो आपके प्लांट स्पीशीज़ होती हैं जिनको ग्रो किया जाता है, प्रिजर्व कर रहे हैं, मतलब कि संभाल के नहीं रख रहे हैं, उनका वहाँ पे कंजर्वेशन हो रहा है, राइट? उसी तरह म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम में आपको पता है कि डेड एनिमल्स को ही ज़्यादातर रखा जाता है, उनके बारे में उसका कलेक्शन होता है. कई बार प्लांट की कुछ ऐसी स्पीशीज़ जो एक्सटेंट हो गई हैं, उनको भी हर्बेरियम में ही जनरली रखते हैं, म्यूज़ियम में नहीं रखते हैं. लेकिन म्यूज़ियम के बारे में आपको पता है, यू कैन ईजिली विजिट म्यूज़ियम एट योर लोकल cities, right? So what do you understand by zoological park? Zoological park are the areas in which animals are preserved, right? तो वहाँ पे जनरली जो जूलॉजिकल पार्क कंप्राइज होते हैं वो क्या है? आपने जू सबने विजिट किया होगा,
तो जू जो एरिया होता है वो आपका जूलॉजिकल पार्क का ही एक पोर्शन है. सो विल बी फर्दर स्टडिंग अबाउट दीज टेक्सोनॉमिकल एड्स. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. हियर what do you understand by herbarium? Herbarium is a storehouse of collected plant specimens that are dried, pressed and preserved on sheets. राइट, यहाँ पे क्या होता है, प्लांट स्पेसिमेन को आपने कट किया, उसको ड्राई किया, प्रेस किया एंड प्रिजर्व किया ऑन शीट्स. ये आपको हॉलिडे होमवर्क में भी दिया जा चुका है. आई होप यू पीपल हैव कंप्लीटेड दैट. सो स्पेसिमेंस, अब वर्ड आता है, बाकी सब आपको पता है. ड्राई कैसे करना है, प्रेस कर देना है, उसको 2 कागज़ के बीच में लगा के रख दीजिए. जब ये प्रोसेस प्रोफेशनली किया जाता है तो उसके लिए अलग टाइप के पेपर्स यूज़ होते हैं, प्रॉपर पेपर्स होते हैं, प्रॉपर शीट्स होती हैं जिनमें इसे प्रिजर्व किया जाता है, तो उसका डेटा लिखा जाता है. स्पेसिमेन मतलब क्या, जो भी चीज़ का आपने स्पेसिमेन लिया, सपोज दैट यू हैव टेकन पीपल लीफ, राइट, पीपल लीफ लिया या बनियन की लीफ लिया, तो उसका डिस्क्रिप्शन ऑन हर्बेरियम शीट. तो जहाँ पे आप उसे पेस्ट करेंगे, राइट, आप जिस पोर्शन में, चाहे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, वो एक पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होता है, एक फॉर्मेट होता है. जब आप उस पर उसे पेस्ट करेंगे, देन यू हैव टू राइट अबाउट ऑल दो दीज स्पेसिमेंस, करेक्ट. सो यू आर गोइंग टू मेंशन अबाउट दीज स्पेसिमेंस, लेबल ऑफ the date and the place of the collection from where it is collected. Okay, so इंग्लिश में लिखा जाएगा पहली चीज़, क्योंकि इंग्लिश ऑल ओवर एक्सेप्टेबल लैंग्वेज है ऑल ओवर द वर्ल्ड. देन लोकल नेम में लिखा जाएगा. लोकल नेम मतलब कि जहाँ से वो पर्टिकुलर स्पीशीज़ का कलेक्शन किया गया है, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा उसको प्रॉपरली जानते होते, तो लोकल नेम से उसको कलेक्ट किया जाएगा, वो लिखा जाएगा, मेंशन किया जाएगा. देन इट्स बोटानिकल नेम. बोटानिकल नेम मीन्स साइंटिफिक नेम. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बोटानिकल नेम और साइंटिफिक नेम. देन फैमिली एंड कलेक्टर नेम. फैमिली मतलब कि कलेक्टर की फैमिली की बात नहीं हो रही है यहाँ पे. फैमिली मतलब कि जो प्लांट स्पीशीज़ की फैमिली होगी, जैसे कि आपका सोलेनेसी है, फेबेसी है, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ होती हैं. आपने अभी इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था आपने. सो कलेक्टर नेम, जिसने कलेक्ट किया है, जिसने कलेक्शन किया है, उसका नाम लिखा जाता है. अच्छा, ये सब किया क्यों गया है? फॉर हैविंग द क्विक रेफरल सिस्टम ऑफ टेक्सोनॉमिक स्टडीज़, ताकि हम एक क्विक रेफरेंस ले सकें टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ का. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ बोटानिकल गार्डन. Botanical garden means it is a specialized garden having collection of living species. इसमें जनरली हम लिविंग प्लांट्स को कलेक्ट करते हैं फॉर रेफरेंस पर्पसेस. सो प्लांट स्पीशीज in these gardens are grown for the identification purpose, and each plant is labeled indicating its botanical or scientific name and its family, same as herbarium. बस फ़र्क ये है कि हर्बेरियम में जो प्लांट स्पीशीज़ होंगे उनको कट करके रखा जाएगा, पूरा प्लांट नहीं प्रिजर्व किया जाता. यहाँ पे पूरे प्लांट ग्रो किए जाते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस, और उसी तरह उसको प्रिजर्व किए जाते हैं. और प्लांट को लेबल कर दिया जाएगा, उसके ऊपर एक टैग लगा दिया जाएगा. दैट टैग वुड बी कंसिस्टिंग ऑफ बोटानिकल नेम, साइंटिफिक नेम एंड द फैमिली. ओके, यू कैन विजिट द बोटानिकल गार्डन इन योर प्लेस, दैट इज़ लखनऊ ऑल्सो, इन कोलकाता ऑल्सो. In Kolkata there is a place known as Havra. So in Havra you can go and visit Indian Botanical Garden, right? It is located in Havra, India. When we are talking about Lucknow, there is one botanical garden very much famous, that is NBRI, National Botanical Research Institute. It comes under CSIR unit, आपका सेंट्रल की यूनिट के अंदर आता है, जिसमें आपका रिसर्च किया जाता है. तो CSIR का काउंसिल ऑफ आपका है, ठीक है. इसके बारे में आपको पता होगा, CSIR के बारे में आपने सुना होगा. काउंसिल ऑफ इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक रिसर्च सेंटर्स होते हैं इसके, कई सारे इंस्टीट्यूट फॉर्म किए गए हैं. लखनऊ में तो काफ़ी ज़्यादा आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं. CTRI है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है. NBRI है, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है. आपका इंडियन IITR है, इंडियन टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो जो आपका टॉक्सिसिटी के जितने भी कंसेप्ट होते हैं उनसे डील करता है. तो बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको NCERT में मिल जाएगा, NBRI मेंशन है. तो बोटानिकल गार्डन्स के बारे में आपको पता चल गया है. नाउ मूविंग ऑन टू द म्यूजियम्स. What do you understand by museums? Museums actually they have
collection of preserved plant and animal species. So अब हर्बेरियम में और म्यूजियम, बोटानिकल गार्डन तो अलग कंसेप्ट है. बोटानिकल गार्डन में आपको पता है कि प्लांट लाइव कंडीशन में होगा, ग्रो किया गया है और वो वहीं पे बढ़ रहा है. लेकिन हर्बेरियम और म्यूज़ियम में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है. यहाँ पे प्लांट पूरा का पूरा प्लांट है, उसको प्रिजर्व कर दिया गया, या एनिमल स्पेसिमेंस है जैसे कि म्यूज़ियम में है. तो वो आप जब म्यूज़ियम विज़िट करेंगे, अगर आपने किया होगा, तो पूरा एनिमल आपको दिखेगा वहाँ पे, राइट. उसका पूरा स्किन के साथ उसको प्रिजर्व किया जाता है, रखा जाता है म्यूज़ियम में. बट that animal is not live animal, right? They are the dead plants and animals, that's why they are preserved. So why they are preserved there? For study and reference purposes. ये जितना भी हम कर रहे हैं, चाहे हर्बेरियम बनाना हो, बोटानिकल गार्डन्स हो, म्यूजियम्स हो, जूलॉजिकल पार्क्स हो, इन सब का पर्पस यही होता है कि हम और हमारी आने वाली जनरेशन इस चीज, जो भी स्पेसिमेंट्स हैं, वो अगर उस पर्टिकुलर कंडीशन में नहीं एग्जिस्ट करें या उन ईयर्स में नहीं एग्जिस्ट करें जो अपकमिंग ईयर्स हैं, तो इनका रेफरेंस लेके उनकी स्टडी की जा सके. जैसे हम डायनासोर्स का अभी भी स्टडी कर रहे हैं, तो क्यों कैसे से कर रहे हैं? क्योंकि कार्बन डेटिंग की हेल्प से हम उसकी स्टडी कर सकते हैं. बाकी चीज़ों की स्टडी उतनी पॉसिबल नहीं है. अगर हम कार्बन डेटिंग से किसी कोल है या किसी और चीज़ का है, कोई थिंग है, कोई बॉडी है, वो बॉडी मतलब कि इन केस डेड बॉडी ऑल्सो, दैट इज़ कितनी ओल्ड है, कैसी सी है, क्या रहा होगा उस समय का फीचर्स, या आपका सिविलाइजेशंस के बारे में इतनी स्टडी थी, तो वो हमने कैसे से करी है? कार्बन डेटिंग की हेल्प से ही करी है. जब जैसे जैसे टेक्निक्स डेवलप होती चली गई, वैसे वैसे फर्दर स्टडीज़ होती चली गई. तो ये स्टडी और रेफरेंस पर्पसेस के लिए इनको प्रिजर्व किया जाता है. ओके. म्यूजियम्स आर जनरली सेट अप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स. ये एक तो चीज़ ये करेक्ट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में इसको क्रिएट किया जाता है. एक और चीज़ है, म्यूज़ियम्स आपको जूलॉजिकल पार्क्स या जूस में भी मिल जाएंगे. जैसे लखनऊ में आपको ज़ू में म्यूज़ियम मिल जाएगा, ज़ू में लाइब्रेरी भी है, राइट. लाइब्रेरी के पोर्शन में ही आपको, ऊपर के पोर्शन में आपको म्यूज़ियम मिल जाएगा, नीचे लाइब्रेरी है. तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बहुत डीप रिलेशन होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का, म्यूज़ियम्स का, हर्बेरियम और बोटानिकल गार्डन्स का आपस में. क्यों? क्योंकि जब आप उसको पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे आप उन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं. अगर आपने म्यूज़ियम में कोई चीज़ रखी है, सपोज दैट आपने टाइगर ही रखा है, टाइगर की कोई स्पीशीज़ रखी है, या मम्मी रखी हुई है किसी उसकी, तो इजिप्शियन मम्मी का कोई एक आपको मिल जाएगा उस में, तो उसके बारे में कैसे पता चलेगा? तो इस वजह से उसे जनरली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में सेटअप किया जाता है, ताकि वहाँ पे लाइब्रेरी एक बिल्टअप करी जा सके, एंड दैट पर्टिकुलर लाइब्रेरी विल हैव द बुक्स विच आर गिविंग रेफरेंस टू ऑल दोज things or animals or plant species which are being preserved over there, right. Next is specimen preserved in containers and jars in preservative solutions. So nothing more to discuss about it. आपके बायो लैब में भी आपको मिल जाएगा कि जितने भी आपके स्पेसिमेंट्स होते हैं उनको कंटेनर्स और जार में प्रिजर्व किया जाता है. वो सिर्फ सोल्यूशन होता है, फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशंस में हम उन्हें प्रिजर्व करके रखते हैं ताकि वो डिके ना करें. उनकी जो स्किन है, कोई भी बायोलॉजिकल थिंग हो जिसका भी बायोलॉजिकल ओरिजिन है, वो कभी ना कभी डिके करेगा. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, जब भी वो मॉइस्चर के कंटेंट में कॉन्टैक्ट में आएगा तो वो डेफिनेटली डिके करेगा. टू प्रिजर्व दैट कॉन्टैक्ट और ऑक्सीडेशन और प्रिवेंट द contact of that particular specimen to the atmosphere, they are kept, generally specimens are kept in preservative solutions. Okay. Next is plants and animals की dry specimens होते हैं. insects को generally insect boxes टाइप के, क्योंकि वो smaller in size होते हैं, तो उनके dry specimens बहुत बड़े नहीं होते, तो उनको आप boxes में रखते हैं, किल करके, पिन करके, ठीक है. तो ऑब्वियसली म्यूज़ियम में आप लाइव या लिविंग इंसेक्ट्स या स्पेसिमेंट्स नहीं रखते हैं, तो यू हैव टू किल देम, और किल्ड वाले आप प्रिजर्व कर लीजिए. तो ये ऑप्शन है आपके पास.
लेकिन रेफरेंस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, बट पिन करके उनको एक पर्टिकुलर बॉक्स में रखा जाता है. देन लार्ज एनिमल्स आर स्टफ्ड एंड प्रिजर्व. तो इसके बारे में आपको बता दिया. जैसे टाइगर है तो टाइगर को का पूरा उसको इनकेस अगर किल किया है, किल करने के बाद उसकी पूरी बॉडी से उसके जो पार्ट्स होते हैं उसको निकाल के उसको स्टफ़ करके तब रखा जाता है. तो स्केलेटन जो होता है एनिमल्स का या ह्यूमन बींग्स का अब ओरिजिनल नहीं है, बट येस दे आर प्रिजर्व्ड देयर. Okay, if you want to have a look over the museum, you can visit your local museum in your city. Okay, so moving on to the next slide. Here there are two major key terms. First is zoological park. What do you understand by zoological park? They are the places where wild animals are kept protected under human care. तो zoos, zoological parks means zoos. ठीक है, वहाँ पे human care के अंडर ही रहते हैं. Humans care for them, they provide food for them, they provide every kind of necessity and medicines to them, and these are the places where wild animals are kept under severe protection. If they are suffering from any disease, if they are going through any hormonal change or any physical change, they are provided with all those supplementary things. If they need a certain temperature for their survival, they are provided under human consideration, and proper check is maintained on those wild animals, right? So next is we can learn about them, about their food habits and behavior, because जब आप जूलॉजिकल पार्क में किसी एनिमल को रख रहे हैं तो आप 24/7 आप उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं. यू कैन पुट सम कैमराज in case of lion and tiger. Otherwise, if they are small animals, you can have a watch over them so that you can observe their habits, their behavior, and their expression to the environment, to the human environment, also how they are behaving. So these are type of things you can study about them. You can study about these animals in live. Okay, people who study zoology in their higher sections, they go and visit such kind of places and they stay over there for longer period of time so that they can have a proper observation of these wild animals. Okay, so moving on to the next point, that is conditions which are provided as animals, means a natural or a proper environment or habitat is provided to those animals so that they must not think themselves as foreigners. उनको वो खुद को एज अ फॉरेन पार्टिकल की तरह या फॉरेन एनिमल की तरह वो खुद को ट्रीट ना करें. लेकिन फिर भी आप कितना भी नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड कर लें, वाइल्ड एनिमल्स की हैबिट में नहीं होता है कि वो पार्क्स में एडजस्ट कर पाएँ. लेकिन फॉर आवर स्टडी, फॉर आवर बेनिफिशियल, फॉर आवर safety purpose also, so that we cannot go in forest 24/7 and can live there with those wild animals to study their conditions, their behavior, their habits, and their body type. So we have created such kind of parks, zoological park, botanical parks, so that we can have a easy study about all those animals as well as plants in case of botanical gardens. Okay, so these were the 4 keys or aids which are taxonomic aids which help us to study about our environment and plants and animals. Now last comes here is the key. You have already heard about zoological park, botanical gardens, museum, etc. So वो तो डिटेल में डिस्कस कर लिया, बट की टर्म आपने नहीं सुनी होगी. की क्या होता है? ये टेक्सोनॉमिकल एड ही होता है. इज अनदर टेक्सोनॉमिकल एड यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी, राइट. की क्या है? डिनोशन, एक तरीके से एक टाइप का डिनोशन आप मान सकते हैं. बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, जनरली पेयर और कपलेट के फॉर्म में स्टडी किया जाता है. कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स अगर होंगे जैसे एक दूसरे के, कीज बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर एंड जनरली इन पेयर कॉल्ड एज कपलेट. कपल वर्ड से बना है कपलेट. जब आप पेयर में स्टडी करते हैं किसी चीज़ की, इट
generally represents the choice made by two opposite options. यहाँ पे एक एक्सेप्ट कर रहा है, दूसरा रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है. कोई एक कपल है, वो एक कोई भी एक कपल है या कोई भी एक चीज़ का आपने कपल फॉर्म कर लिया, उसमें सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी आपको स्टडी करनी है, तो तब हम की मदद से इसको पढ़ते हैं, ठीक है. और इसमें क्या होता है, एक एक्सेप्टिंग होगा, दूसरा रिजेक्टिंग होगा. ईच स्टेटमेंट लीड टू ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड अ लीड. अब की जब आप पढ़ाते हैं, ये एक टेक्सोनॉमिकल एड है, तो ये जब आप फॉर्म करेंगे, ये स्टडी टाइप में एक चार्ट फॉर्म में या एक कंपाइलेशन के फॉर्म में स्टडी करते हैं इसे, तो जो इसका एक स्टेटमेंट होता है, ये एक स्टेटमेंट लीड कहलाता है. लेड, आप इसे लीड भी पढ़ सकते हैं, लेड भी पढ़ सकते हैं, ठीक है. तो लेड कहलाता है. And what is next? Separate taxonomic keys are required for each taxonomic category, such as family, genus, species, for the identification purpose. तो जो आपके taxonomic keys हैं वो सेपरेट होती हैं. ऐसा नहीं है कि फैमिली के लिए जो यूज़ किया वही जीनस के लिए यूज़ कर दिया, हम यूज़ ही नहीं कर सकते. अगर हम यूज़ करने जाएंगे तो हम एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे, उस चीज़ का एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्लैश करेंगे ना. फैमिली अलग होती है, जीनस अलग होता है, टर्म्स अलग अलग होती हैं. तो इसलिए देयर आर सेपरेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज फॉर द स्टडी ऑफ फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज. ओके. देयर इज़ एनालिटिकल कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर. एनालिटिकल इन नेचर क्यों होती है? क्योंकि एनालिसिस होता है कि अच्छा, इस अगर आपने कोई चीज़ स्टडी करनी है तो आपको एक कंक्लूजन पे आना पड़ेगा, एक एनालिसिस निकालना पड़ेगा, ठीक है, कि ऐसा है तो ये है, इसका बॉडी टाइप ऐसा है. अगर फिशेज़ में गिल्स प्रेजेंट हैं तो इट मीन्स कि वो वाटर में पाया जाता है. अगर वाटर में नहीं पाया जाता तो उसमें गिल्स क्यों प्रेजेंट है? तो ये एक एनालिसिस है. तो कीज एनालिसिस पे बेस्ड होती हैं. दैट्स वाई ये दे आर जनरली एनालिटिक इन नेचर. तो इसमें आप कंपैरेटिव स्टडी करते हैं. अच्छा, इसमें ये पाया जाता, सपोज दैट आपको दो एनिमल्स के बीच में स्टडी करना है, तो किसी का बॉडी टाइप कुछ है, किसी का बॉडी टाइप कुछ है, तो आप कैसे से बताएंगे? अगर किसी का बॉडी टाइप बहुत उसके जैसे कंगारू है, कंगारू खड़े होकर भी चल सकते हैं 2 लेग्स पे, एंड उसके स्टमक में बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो आप उसको किसी और एनिमल से कंपेयर कर लो, डियर से कंपेयर कर लो. तो कंपेयर करेंगे आप, तो डियर के पास ऐसा कोई बैग नहीं होता है, लेकिन कंगारूज के पास ऐसा बैग होता है. तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों के कंडीशंस में डिफरेंस है, एनवायरनमेंट में डिफरेंस है, उनके बॉडी टाइप में डिफरेंस है. तो एनालिसिस करना पड़ेगा क्यों ऐसा होता है. तो उनकी रिसर्च, इस पर्टिकुलर चीज़ का एनालिसिस करना, एनालिसिस करके लीड या लेड डेवलपमेंट करना, कि एक स्टेटमेंट दे दिया, किस बेसिस पे? कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे. और ये हम टर्म किस में करेंगे इन सब चीज़ों को? की के अंदर, राइट. सो फर्दर थिंग्स विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, एंड टिल देन you are going to read this particular chapter and complete your question answers of this chapter. They are very short question answers mentioned over in the exercises portion. Go through them, and if you have any query you can ask in the comment section. And thank you students, take care.